The more we become attached to Krishna, then we forget this material. This is attachment detached. You cannot remain simply detached. That is then arujjakachena parang padang tato, then it will again fall down. There must be some positive attachment. That positive attachment is Krishna. Then you will be able to be detached with this material. Otherwise it is not possible. Mame vaja prapaddante, mayame taankaram. Two things. If you want to get out of this maya, then you have to surrender to Krishna and become more attached by devotional service. Adu sadhya tatu sadhu sangha, the processes are there. Tatu bhajana kriya, atho anartha nivitti syat, tatu nishtha, tatu ruchi, tatha shakti, tatu bhava, sadhukanam ayam premna pradudbhavi bhavet pramo. So the summary is that if you increase your attachment for Krishna, just like Arjuna had already attachment for Krishna, but when he listened Bhagavad Gita from Krishna, he understood what is Krishna. Then, in the beginning, he was not listening to the order of Krishna that he must fight. But when he understood that Krishna is my friend, Krishna is my life and soul, then he said, Karishe vajanam tava. Yes, I shall do that. I shall keep. Never mind. This is attachment detached. First of all, he had attachment to the family, and when he understood that my real attachment is Krishna, whatever he is saying, I shall do it. This is attachment. Our Hindu sages from times immemorial have enjoined in four purusharthas, dharma, artha, kama and moksha. How to So to become Krishna conscious, you have to transcend even the dharmartha, kama, moksha. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, in the beginning it is said, dharma projita koitava astra paramaninmasarana vastava vastu vedam aptra. So you have to, Siddhartha Swami is giving his comment in this connection, atra mokkha vancha api nirastam. You have to go beyond mokkha vancha. Then there will be attachment for Krishna. Sattanga param dhimai. So, this is ordinary things. Dharma, artha, kama, moksha. And Krishna bhakti is beyond moksha. So you have to go beyond. How you can go? That is by Krishna bhakti. Mancha vicharini bhakti yogi na ja sevate sagunan samutitta etana brahma bhuyaya kalpate brahma bhuta prasannatma na sochati nakad. So this is the way. Mancha vicharini. If one takes to Krishna consciousness seriously, sagunan samutitta etana brahma bhuyaya kalpate. He very easily transcends the influence of the three modes of material nature, and immediately he becomes identified with his Brahma realization. That is what. Now let us chant Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtyam Sapitam Jena Bhutale Sayanga Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam. He Krishna Karuna Sandho Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrikhavhanu Sute Devi Pranamami Haripriya. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
ऋषभ उवाच नायंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग जी तपो दिव्यंग पुत्र का जेन सत्यं शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंत। कल सदाशिव लाल जी से बातचीत हुई थी कि ऋषभ देव जो उपदेश दिया था उनके लड़कों को रिटायर करने का पहले सब बड़े बड़े राजा लोग रिटायर करते। ये वैदिक सभ्यता है। ये नहीं कि जब तक गोली से ना मार दिया जाए वो रिटायर नहीं करे, ये बात नहीं। एक समय रिटायर करने का है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो हिंदू धर्म का नाम से चलता है, ये शब्द जो हिंदू है ये कोई वैदिक भाषा में है नहीं। हमारा शास्त्र में जो है वो वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से जीवन सफल होता है। यही वैदिक सिद्धांत है। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण पर प्रमाण विष्णु आराधते पुंसांग नान्य तत्वकार। यानी जो मनुष्य समाज का जो सभ्यता शुरू होती है वो वर्णाश्रम धर्म जब तक पालन नहीं करेगा तो वो समाज वो पशु समाज है, कोई मनुष्य समाज नहीं माना जाता। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परम। वर्णाश्रम धर्म का अनुसार भगवान भगवद गीता में भी बताया है, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुणो कर्म विभाग। जो भगवान जो चीज बनाया है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म का अनुसार, जन्म का अनुसार नहीं, वो कैसा आप उठा देंगे, उसको उठाने से फिर मनुष्य समाज ही नहीं रहेगा, पशु समाज हो जाएगा। तो महाराज ऋषभदेव जिनको हिंदू यानी वर्णाश्रम धर्मी जो है तो भागवत में मानते ही हैं। कल सुना जो जैन लोग भी मानते हैं ऋषभदेव को, आदि जैन। तो चाहे जैन है, हिंदू हो, उनका जो उपदेश है वो सबके लिए है। जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो और क्रिश्चियन हो, क्योंकि भगवत उपदेश जो है वो सबके लिए है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो अन्न पैदा करने से चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो ये जो अन्न उत्पादन करना, सबको सुखी बनाना, ये हिंदू लोग के लिए भी है, मुसलमान का भी लिए है, जैन का भी लिए है, सबके लिए है। तो भगवत वचन जो है, भगवान तो एक ही है और उनका जो वचन है वो सबके लिए है। ये नहीं है जो केवल हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं।
ये जो मुसलमान का भगवान और हिंदू का भगवान ये सब अलग अलग नहीं होता, भगवान तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जैसे सोना है, सोना हिंदू का पास रहने से क्या हिंदू सोना आ जाएगा, और मुसलमान का पास क्या मुसलमान सोना हो जाएगा? सोना सोना, वो चाहे हिंदू का पास रहे और मुसलमान का पास रहे, जैन का पास रहे। तो इसी प्रकार धर्म जो है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कोई सेक्टेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का सूत्र भागवत में बताया कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे राजा का कानून होता है, वो क्या है, हिंदू के लिए होता है, मुसलमान के लिए होता है, क्रिश्चियन सबके लिए होता है। इसी प्रकार धर्म का जो सूत्र, जो कानून भगवान बना देता है, वो सबके लिए है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई सेक्टेरियन, कोई विशेष समाज के लिए, देश के लिए, पात्र के लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, तो धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीत। तो इधर भी ऋषभ देव जो भगवान का अवतार है, वो अपने पुत्र को शिक्षण दे रहे हैं, जो बेटा अयंग देह न अयंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर पूजांग। हमारे पुत्र, ये जो शरीर है अयंग देह, दिस बॉडी, ये जो शरीर है मनुष्य शरीर, शरीर सभी का होता है, कुत्ता का भी होता है, सुअर का भी होता है, गधा का भी होता है और मनुष्य का भी होता है। बाकी विशेष करके कहते हैं ये जो शरीर है अयंग देह, दिस बॉडी, ये शरीर कौन शरीर? देह भाजांग निलोके, निलोके मनुष्य समाज में जो शरीर है वो शरीर कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी। बहुत कष्ट करके शरीर का जो चाहिदा है, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज शरीर का चाहिदा है। कुछ खाने के लिए चाहिए, सोने का कुछ जगह होना चाहिए, अपार्टमेंट, और आहार निद्रा भय, और भय से बचाने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, डिफेंस, और मैथुन और इंद्रिय तर्क, विशेष करके यौन संपत्ति। ये 4 चीज सबके लिए जरूरत है, कुत्ता का भी जरूरत है और आदमी का भी जरूरत है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुवी नराणा। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज सबके लिए जरूरत है, चाहे कुत्ता का शरीर है और मनुष्य का शरीर है। परंतु कुछ प्रभेद होना तो चाहिए, मनुष्य का शरीर और कुत्ता का शरीर। तो वही बता रहे हैं जो अयंग देह देहो भाजांग निलोके, ये जो मनुष्य समाज में जो शरीर मिला है वो कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी। वो जैसे सुअर कुकर दिन भर परिश्रम करके जो अपना जो शरीर का जो चाहिदा है उसको मिटाते हैं, मनुष्य शरीर में ये नहीं होना चाहिए, मनुष्य शरीर में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर में प्राकृतिक उनका जो टेंडेंसी है कि कुछ रुपया कमा करके स्थिर होकर के बैठ के उसको भोग करें। ये कुत्ता शरीर और गधा शरीर और सुअर का शरीर में ये संभव नहीं है। उनको तो जब तक जीवन रहेगा तब तक उसको परिश्रम करने पड़ेगा और तब उसका शरीर का जो चाहिदा मिटेगा। इसलिए मना करते हैं जो अयंग देह, ये जो विशेष शरीर है मनुष्य शरीर,
ये इतना परिश्रम करके शरीर का जो चाहिदा मिटाना है वो तो सुअर गधा के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं। ये बताते मनुष्य के लिए इतना परिश्रम करके केवल शरीर का चाहिदा मिटाना ये उचित नहीं है। तो मनुष्य के लिए क्या उचित है बताते हैं, तपो दिव्यं। मनुष्य शरीर है तपस्या के लिए। केवल परिश्रम करके दिन रात नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट और मरने का समय तक अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ, एक परिश्रम करके इतना परिश्रम करके ये उचित नहीं है। मनुष्य शरीर कुछ तो समय केवल तपस्या करने के लिए वो रखना चाहिए। इसलिए मनुष्य समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का विचार है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, कम से कम शरीर छोड़ने का पहले वो वानप्रस्थ और सन्यास तो ग्रहण करें। और तपस्या के लिए तपो दिव्यंग पुत्र का तपस्या का जरूरत क्या है, क्यों तपस्या करें ना, तपो दिव्यंग पुत्र का जीना सत्तम शुद्धे। ये जो सत्ता है सब कोई चाहते हैं कि है तो जीव मात्र ही, न हन्नते हन्नमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो जाने से जीव नष्ट नहीं होता है। देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये शरीर नष्ट हो जाने से फिर देहांतर प्राप्ति होगी और एक शरीर मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अस्मिन् देहे यथा कौमार यौवन जरा, जैसा ये शरीर में बच्चा रहता है, फिर कुमार होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर बुढ़ा होने का बाद मरण होता है। तो वो जो मरण का बाद तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शुरू से बच्चा शरीर से बालक शरीर, बालक शरीर से यौवन शरीर, यौवन शरीर से बुढ़ा शरीर, इसी प्रकार ये शरीर जाने से और एक शरीर मिलेगा। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य न हुई। तो इसलिए क्या शरीर हमको मिलेगा आगे जाकर के, उसके लिए तपस्या करना है। और नहीं तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषान दर्शनम, एक शरीर छोड़ करके फिर एक शरीर ग्रहण करने पड़ेगा, फिर यो शरीर में जो कर्म बंधन है उसको भोगने पड़ेगा, फिर शरीर छोड़ने पड़ेगा, फिर लेने पड़ेगा, ये चालू है। ये शिक्षण पहले होना चाहिए कि हमको शरीर छोड़ना है तथा देहांतर प्राप्ति, और छोड़ करके क्या शरीर मिलेगा हमको, उस विषय में तैयार होना है। ये अगर नहीं करते हैं तो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है नीरो के, ये हम वृथा विफल हम उसको बिताते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है ये ठीक नहीं है। ये पुत्र को उपदेश दे रहा है ऋषभदेव, ये तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तंग शुद्धे, प्यूरिफाई योर existence and identity, purify. तो प्यूरिफाई, वाई प्यूरिफाई, क्यों उसको शुद्ध किया जाए ना, जतो शुद्धि तो जस्माद ब्रह्म सुख कमनम। हम लोग सभी चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इतना जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं शरीर लेकर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का उद्देश्य क्या है, सुख। बाकी ये जो शरीर छोड़ने पड़ता है तो सुख कहाँ है। बाकी हम लोग माया का बस होकर के उसी को सुख मानते हैं। बाकी शास्त्र कहते हैं ये सुख नहीं है। सुख तो पहले तुम इसको जय करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको जय करो फिर तुमको सुख मिलेगा। तो ये ऋषभदेव का उपदेश है कि हम लोग को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और शरीर छोड़ने का पहले जो हमारा सत्ता है, जीवन है, उसको शुद्ध करना चाहिए। शुद्धि तो सत्ता ब्रह्म सुखम जगनम, तभी हमको सुख मिलेगा, आनंद, सच्चिदानंद विग्रह।
ममैवांश जीव भूत भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं जो जीवात्मा हमारा अंश है और भगवान का रूप क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान जो है उनका शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, ये शरीर नहीं है जैसा हम लोग का शरीर है धन सोने वाला, भगवान का ऐसे शरीर नहीं है। हम लोग समझते हैं जो कृष्ण हमारा ही ऐसे कोई व्यक्ति है, अब जानती मांग मूढ़ा मानसिंह तनुमान, वो समझते हैं कि क्योंकि कृष्ण मनुष्य शरीर से आते हैं तो जो कोई मूर्ख होता है मूढ़ा वो अब जानती अवज्ञा करते हैं। बाकी भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह परम भाव अजानंद, वो जानते नहीं भगवान का शरीर किस तरह से होता। तो वो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान खुद कहते हैं कि ममैवांश जीवोत, ये जितना जीव है सब हमारा अंश है, तो वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। सत का अर्थ होता है इटाना, न अन्नते अन्नमान, शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होता, उसका नाम है सत, ओम तत्सत। और सत चित, चित का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानवान, नित्य ज्ञानमय और आनंदमय, ये हमारा स्वरूप है। तो मुक्ति का अर्थ होता है स्वरूपेण अवस्थिति हित्या अन्यथा रूपम, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ होता है ये जो अभी हमारा अन्यथा रूप है, सच्चिदानंद विग्रह नहीं है, मरने वाला है, नित्य नहीं है और अज्ञानमय है और निरानंदमय है, ये शरीर छोड़ करके जब सच्चिदानंद विग्रह हमको मिलेगा उसकी नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम, अभी अन्यथा रूप है तो इसलिए तपस्या करनी चाहिए, ये मनुष्य जीवन है। तपो दिव्यंग पुत्र काजीन सत्ता शुद्धे, सत्ता को शुद्ध करना चाहिए। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानंद, असल तुम्हारा दुख क्या है? असल दुख ही है जो बार बार हमको जन्म लेने पड़ता है, बार बार हमको मरने को पड़ता है और शरीर लेने से हमको वृद्धावस्था ग्रहण करने पड़ता है और व्याधि भी होता है, उससे भी त्रिताप जंतन आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि। तो क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का विचार नहीं है, सब छोड़ दिया हम लोग, इसलिए असल जो क्या दुख है हम लोग नहीं समझते हैं। तात्कालिक दुख को मिटाने के लिए हम लोग सब परिश्रम करते हैं, वो तो पशु भी करता है। तात्कालिक भूख लगा है, देखो जी कहाँ खाने को मिलेगा, वो सुअर जो है वो देखता है कहाँ स्टूल मिलेगा, घूम मिलेगा, और मनुष्य ढूंढता है कहाँ रेस्टोरेंट है, होटल है। बात एक ही है, परिश्रम करते केवल खाने के लिए। शास्त्र में कहते हैं खाने का चीज तुम्हारा मौजूद है, उसके लिए तुमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं। तस्यैव हेत प्रजते तको विद न लभते जद भ्रमताम पर्दे। भगवान सबके लिए खाने का कहीं ना कहीं वो निश्चित करके रखा ही है। हम लोग तो ह्यूमन सोसाइटी है, बिजनेस करते हैं खाने के लिए। बाकी 84 लाख जोनी जो है उसमें तो 80 लाख तो केवल पशु जानवर यही सब होते हैं। उनके लिए भगवान सब खाने को देता है, हाथी को भी देता है, चींटू को भी देता है, और हमको क्यों नहीं देगा? वो खाने के लिए शास्त्र कहते हैं जो ये जो 4 चीज है, विषय खलु सर्वतस्या। विषय, विषय का अर्थ होता है ये जो आहार निद्रा भय में तुम, ये कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा वो तुम्हारा अस्तित्व ठीक ठाक है, उसके लिए कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तस्यैव हेत प्रजते तको विद न लभते जद भ्रमताम उपरजत। बाकी ये जो भगवान से संपर्क हमारा छूट गया है उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से फिर हमारा भगवान से संपर्क बनेगा। अगर भगवान से हमारा संपर्क फिर बन गया
तत्तादि हंग पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी कौन थे, ये सब विचार है। तो हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, हम लोग यही बात समझा रहे हैं। जो ये बात हम लोग नहीं करते हैं जो सब शरीर यात्रा के जो ये कर्म करना है इसको सब छोड़ छाड़ दिया जाए, नहीं, ये बात नहीं। असल जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, जो भगवान से हम संपर्क को छुड़ा दिया है। इसलिए हमारा तर्क है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पासे ते माया तारे जापोटिया धौरे। वैष्णव कवि बांग्लादेश ने बताया है कि जब हम लोग कृष्ण को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और केवल दुनिया को भोग चाहते हैं, तो उसमें उसी का नाम है माया। हाँ, माया और कुछ नहीं। माया का अर्थ होता है जो चीज असल में है नहीं। ये भगवान को भूल जाना यही माया है। इसलिए भगवान कहते हैं मामी वो जब प्रबद्धंते माया में तांग तरंते थे। माया से छुट्टी लेने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल भगवान को स्वीकार किया जाए, माया उसी वक्त भग जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। इसलिए भगवान इतना अपना वैकुंठ छोड़ करके, गोलोक वृंदावन छोड़ करके इधर आते हैं। जदा जदा ही धर्म सब ग्लानि भवती। वो धर्म का ग्लानि क्या चाहिए? क्यों? भगवान को नहीं मानते, नास्तिक का बात। भगवान क्या है? हम भगवान। ये जो नास्तिकवाद है ये धर्म की ग्लानि। तो इसलिए भगवान खुद आता है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवती। क्योंकि धर्म क्या चाहिए? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान जो बात कहते हैं वही धर्म है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। तो यही धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो हिंदू मुसलमान धर्म हम लोग सब बनाए हैं, ये तो मैन मेड है, मनुष्य बनाए। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मान। भगवान कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन धर्म को बताने के लिए नहीं आता। जो असल धर्म जो है भगवान का चरण में शरणागति, उसको बताने के लिए आते हैं। और जो भगवत भक्त हैं इसी को प्रचार करते हैं। भगवत भक्त जो है वो क्या धर्म प्रचार करते हैं? वो कोई ऐसा कुछ बना करके एक न्यू पैटर्न धर्म वो नहीं प्रचार करते हैं। जो भगवान बोलते हैं उसी को प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये परंपरा से जो बात भगवान बताए हैं उसके बाद भगवान से ब्रह्मा जी सीखा वही बताते हैं, और ब्रह्मा जी से नारद सीखा है और नारद भी वही बताते हैं, और नारद जी से व्यासदेव सीखा है और व्यासदेव भी वही बताते हैं। सत्यम परम धीमहि जन्माद्य सजतः अन्नयात ततश्चार्थी सो विघ्नस्सरा। और व्यासदेव का परंपरा से हम लोग हैं, मध्याचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु वही बात बताते हैं, वो एक ही बात, कोई न्यू मैन्युफैक्चर नहीं है। वी डोंट मैन्युफैक्चर। दिस इज द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। वी डोंट मैन्युफैक्चर। भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। हम लोग ही बता और कुछ नहीं। सबको कहता है देखो जी सब समय भगवान का चिंतन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसी में भगवान का चिंतन होता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासम सखमात्म निवेदनम। ये भगवत भक्त। कोई दूसरी बात नहीं बताते हैं। ये भगवान नहीं है, हम भगवान है, तुम भगवान है, भगवान का कुआड़ा चल रहा है, ये सब झूठ बात नहीं बताते। असल बात बताते हैं। क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मन भक्त। भगवान खुद कहते हैं सब समय हमारा चिंतन करो, और हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान का चिंतन करो। बात एक ही है, कोई दूसरी बात नहीं है। इसका नाम है परंपरा। ये हमारा चिंतन करो, हम नहीं ऐसा समझ गए जो हमारा चिंतन करो। माई हेड मीन्स माई हेड,
नो नो माई हेड, आई हेड, नॉट लाइक दैट। तो यही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावना अमृत। ये भगवान जो बताते हैं हम लोग ही बताते हैं। ये भागवत में ही भगवान बताते हैं, भागवत में व्यासदेव भगवान का विषय बताते हैं। चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, अब कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश। जिस देश में आप रहते हैं, आप लोग मुंबई में रहते हैं, ये लोग कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई और कहीं रहता है, तो हमारा प्रचार का विषय क्या है? हमारा आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश। चैतन्य महाप्रभु हमारी आज्ञा से तुम लोग सब गुरु बन जा। तो गुरु कैसा हम बने? हम तो कोई शिक्षित व्यक्ति आए नहीं और हम बिजनेस करते हैं, गुरु कैसे बने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। किसी से तुम मिलते तो है, उससे उसको केवल बताओ जो भगवान कृष्ण बताया है, बस तुम गुरु हो गए। चैतन्य महाप्रभु का हिसाब से गुरु होना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि वो मैन्युफैक्चर ना करे, ज्यादा उस्ताद जी ना बने, तो गुरु होना कोई मुश्किल नहीं। केवल भगवान तो बताया है सब कुछ, उसको खाली रिपीट करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये हम लोग का मिशन है। और आप लोग से सबसे निवेदन नहीं है, जो ज्यादा इधर उधर बात बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना होगा। केवल कृष्ण जो बोला है उसको बोलिए, उसको सीखिए और उसको दूसरों को बोलिए और उसको सिखाइए, जीवन धन्य हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं जो तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्कंग शुद्धे। यदि आपको सत्ता शुद्ध करना है, सत्ता शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु से छुट्टी, ये सत्ता शुद्धि। और जन्म मृत्यु नहीं। भगवान खुद कहते हैं जन्म कर्मं च दिव्यम में जो जानाति तत्वतः तथा देहं पुनर्जन्म नहीं थी मामेति कौन। बड़ा सरल है। और भगवान का जन्म कर्म समझने में कोई मुश्किल है? भगवान कहते हैं, खुद बताते हैं, अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बूधा भाव समझिए। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा सुदुर्लभ। और वो ज्ञान कब मिलता है? बहुनाम जन्म नाम अंते। ये जो इधर उधर बात बोलते बोलते अनेक जन्म बीत जाने से जब वास्तविक उसको दिमाग ठीक होता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव यही सब कुछ है भी। भगवान खुद बताते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य जतः। और उसको व्याख्यान करते हैं श्रीमद् भागवत, जन्माद्यस्य जतः अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सराट तेने ब्रह्मविदा। ये सब शास्त्र है। ये कृष्णोपदेश, ये भगवत गीता भी कृष्णोपदेश है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, आज श्रीमद् भागवत भी कृष्णोपदेश है। व्यासदेव स्वयं कृष्ण का विषय बता रहे हैं, परम सत्यम धीमहि। तो सभी हम लोग जो अपना पूर्व इतिहास का अनुसार जो हम लोग कृष्टि को फिर लाने चाहते हैं, कृष्टि तो मौजूद है, बाकी हम लोग जानते नहीं, और जानते भी है तो उसको प्रचार नहीं करते हैं। नते विदु सार्थ गति विष्णु दुराशया जे बहिरर्थमाणी। ये बाहरी चीज से हम लोग समय एडजस्ट करने को चाहते हैं,
संगठन करने को चाहते हैं, उसमें कुछ फल नहीं होगा। अंधा जथा अंधी रूपणीय माना स्तेपी स्वतंत्रा उदाम निबध्या। ये जो अंधे लोग हैं वो समझते हैं और दूसरे अंधे को हम लीड करेंगे तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि ईशतंत्रा उरुदाम निबध्या, भगवान के कानून से वो हाथ पैर सब बंधा हुआ है, इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं हो सकेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति का कानून से बाय नेचर लॉ हाथ पैर सब बंधा हुआ है, कोई एक तंत्र भी वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। जब प्रकृति बोलेगा आज तुमको मरना है, किसी का बाप का भी इख्तियार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट कोई एक मिनट भी बचा सकता। मृत्यु सर्वहरस्य हम, भगवान कहते हैं यदि कोई हमको नहीं समझा है तो मरने का बाद वो जरूर समझेगा, जब उनका सब चीज हम छीन लेंगे। ये सब विचार है। इसलिए ऋषभ बताते हैं जो बेटा ये जो मनुष्य जीवन है ये कुत्ता का ऐसे और सुअर का ऐसे दिन भर खाली परिश्रम करना और जहां थोड़ा बल हुआ और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य जो है इसको तपस्या द्वारा, तपस्या का अर्थ होता है जो चीज हमको पसंद होता है उसको छोड़ देना, इसका नाम है तपस्या। तपस्या का माने जैसा हम बीड़ी फूकते हैं और उसका हम बोले बीड़ी छोड़ दीजिए तो जरूर कुछ तकलीफ होगा, तो वो तकलीफ सहन करने पड़ेगा, उसका नाम है तपस्या। हम शराब पीते हैं, शराब पीने से हम छोड़ देने से हमारा तकलीफ होगा, बाकी भगवान के लिए यदि हम शराब छोड़ देते हैं उसमें हमारा कुछ तकलीफ होता है, ये तकलीफ को सहन करना पड़ेगा, इसका नाम है तपस्या। तपो दिव्यांग पुत्र का अजीन सद, दिव्यांग, दिव्यांग का अर्थ होता है डिवाइन, भगवान के लिए कुछ तपस्या कर। इसलिए हम लोग बताते हैं, ये यूरोप अमेरिका जहां जहां हम लोग सब प्रचार करते हैं, देखो जी आप लोग 4 चीज छोड़ दीजिए तपस्या की। क्या? नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके अरे प्रत्येक स्त्री को अपनी माता का ऐसे समझना, ये मामूली चाणक्य पंडित का विचार है। पंडित कौन है? ये चाणक्य पंडित का नाम आप सुने हैं, जहां चाणक्यपुरी आपका न्यू दिल्ली में है, बड़ा पॉलिटिशियन, उनका मॉरल इंस्ट्रक्शन है, नीति बाग। वो कहते हैं कि पंडित किसको कहा जाएगा? नो, जो यूनिवर्सिटी में गया BA MA PhD डिग्री सब ला के उसको पंडित कहा जाए? नहीं, चाणक्य पंडित नहीं, वो बात नहीं। फिर किसको कहा जाएगा? मातृवत परदारेषु, जो दूसरे स्त्री को अपना माता का ऐसे समझते हैं वो पंडित है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टव आत्मवत सर्वभूतेषु जा पश्यति सा पंडित। ये चाणक्य पंडित है, पंडित वो भी पंडित। अब कौन पंडित है उसको डेफिनेशन बताया। तो इसलिए ये अवैध स्त्री स्त्री चाहिए, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म में विवाहित स्त्री। भगवान भी कहते हैं कि धर्माविरुद्ध काम, जो धर्म का अविरुद्ध काम है वो मैं हूं। केवल पुत्रोत्पादन करने के लिए जो स्त्री का संग है वो धार्मिक है, और इसका अलावा वो अवैध स्त्री संग है, इलिसिट सेक्स, उसको छोड़ना चाहिए, इसका नाम है तपस्या। अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए, स्त्री सुना और बिथा मांस भक्षण करना। हम लोग मनुष्य है, हमारे लिए भगवान कितने चीज बनाए हैं, ग्रेन्स बनाया है, फ्रूट्स बनाया है, दूध से कितना चीज, ये सब हम लोग खाएंगे ना, मांस खाएंगे, ये महापाप है। इसलिए बताते हैं इसको छोड़ दो, इसमें छोड़ने से अगर कुछ तुम्हारा तकलीफ होता है तो उसको सहन करो, उसको नाम है तपस्या। तो 4 चीज ये लोग को छुड़ा दिया। ये अवैध स्त्री संग जो कि उनका दैनिक काम, दैनिक काम है, बाकी भगवान के लिए ये छोड़ दिया।
अवैध स्त्री संग छोड़ दिया है और मांस, मछली, अंडा ये सब छोड़ दिया है और शराब पीना तो छोड़ दिया ही है, बीड़ी भी छोड़ दिया है, सिगरेट भी छोड़ दिया है, चाय भी छोड़ दिया है। हाँ, अवैध स्त्री संग और सुना पान, पान का अर्थ होता है चाय पान भी वो पान है, पान खाना भी वो भी नशा है। तो ये सब तपस्या है, छोड़ देना चाहिए। अवैध स्त्री संग, मांसादि भक्षण और नशा भांग और जुआ खेल, इतना ही तपस्या है, ज्यादा नहीं। वन जंगल में जाने नहीं पड़ेगा। मुझे भी हिंदी बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है और हमारा शरीर भी कलकत्ता का है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी नहीं है और गुजराती भी बोल नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा तो समझ लेता हूँ, जैसे दामजी भाई गुजराती में बताया वो हम सब समझ लिया, बाकी बोल नहीं पाता। तो जहां तक है हिंदी में आपको सुनाऊंगा। अभी व्यक्तिगत तो हमारा जो शिष्य श्रीमान एल्फ्रेड फॉर का विषय श्रीमान दाम जी बताया, उनको अभी हमें नाम दिया है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी के सम्राट थे, बाकी उनको काम था भगवत बोली। सबई मन कृष्ण पदारविंद वाचांश वैकुंठ गुणानुबल। अम्बरीश महाराज सब राजकार्य करते हुए भी सब समय अपना मन जो है भगवान का चरणारविंद में लगा दे। सबई मन, ये जो मन है इसको यदि भगवान का चरण में कोई लगा दे तो फिर उसी से उनको सब लाभ हो जाए। तो अम्बरीश महाराज सब समय अपना जो मन है वो भगवान का चरण में लगा रखते थे और वाचांशी वैकुंठ गुणानुबंध, जब बातचीत करते थे तो भगवान का विषय ही करते। राजा थे, उनको तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, सेक्रेटरी लोग है वो सब, उनसे अगर कोई खास बात करने को है तो वो वैकुंठ गुणानुबंध। वैकुंठ का अर्थ होता है भगवान और वैकुंठ लोक भी होता है जहां भगवान रहते हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है जिधर कुंठा नहीं है, एंजाइटी। ये दुनिया में सब समय एंजाइटी है सबको, मनुष्य भी हो या चाहे देवता भी हो और चाहे पशु हो पक्षी हो, सबको लिए वो जो एंजाइटी, सब समय चिंतन आगे जाके क्या होगा, ये सब सबका भीतर है। तो वैकुंठ का अर्थ होता है जहां ये एंजाइटी नहीं है, कुंठा नहीं, सब आनंद रहे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काम, वो वैकुंठ लोग मद भक्ति लभते परा। वो अम्बरीश महाराज वो जब बातचीत करते थे तो वैकुंठ का विषय, और चलते फिरते थे तो मंदिर जाते थे और रूप दर्शन करता था, भगवान का रूप दर्शन करता, और भगवान का चरण में जो फूल तुलसी दी जाती थी उसको घ्राण लेते और जीवा में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते। यानी सब इंद्रिय है, आंख है, कान है, जीवा है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। अम्बरीश महाराज ये जानते थे कि ये सब इंद्रिय किस तरह से भगवान में लगाना चाहिए।
इसका नाम है भक्ति। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनंग भक्ति रुच। भक्ति का अर्थ क्या है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल। ये जो हमारा सब इंद्रिय है इसको निर्मल करना चाहिए। अभी निर्मल नहीं है। जैसा हम लोग समझते हैं ये शरीर हमारा है, बाकी ये निर्मल ज्ञान नहीं है। निर्मल ज्ञान है ये शरीर भगवान हमको दिया है। जैसा आप लोग हमारे जैसे सन्यासी को एक रहने का जगह देते हैं, इसी प्रकार ये जो शरीर है ये हमको भगवान देता है। असल में जैसे मकान मालिक एक कमरा हमको रहने को दिया है, उसका मतलब नहीं है जो कमरा हमारा संपत्ति होगी, नहीं। संपत्ति तो मकान मालिक का है, बाकी हमको रहने को दिया गया। इसी प्रकार ये जो शरीर है, इंद्रिय है, ये सब भगवान की है, भगवान का उपकार करने के लिए है और हमको रहने दिया गया है। मैं यदि ये शरीर से भगवान जो चाहते हैं उस काम को मैं करता हूं तो उसकी नाम है भक्ति। और कुछ काम जो आप कर रहे हैं सकर्मणा तब अभ्यर्च्य संसिद्धि लभते नर। भगवान बताए अपना जो काम है करो, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष भी है तब भी अपना काम नहीं छोड़ना। ये भगवान सदोषमपि न त्यजेत्। दुनिया में कोई भी काम कीजिए, सभी चीज कुछ ना कुछ दोष रहता ही है। भगवान खुद बताया है, जैसे अग्नि है पवित्र, उसमें भी एक दोष है, धूम है, धुआं है। तो ये दुनिया में बिल्कुल पवित्र चीज हो ही नहीं सकती। परंतु कोई भी चीज होए, कोई भी काम होए, यदि वो भगवान की सेवा के लिए है तो उसका नाम है भक्ति। तत्परत्वेन निर्मल, वो निर्मल होता है। तत्परत्व वो भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए वो निर्मल है। इसलिए भगवान खुद बताया है कि अपि चेत् सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति शुरू किया है, अभी प्रवीण नहीं हुआ है, पूर्व अभ्यास का मुझे कुछ कुछ दोष भी मालूम होता है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं न अपीते सुदुराचार। कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहे हैं, बाकी बहुत से दोष भी दिखाई जाते हैं, तो भगवान उसके लिए बोलते हैं अगर दुराचार नहीं, अगर सुदुराचार भी हो, अपीते सुदुराचार, बाकी एक गुण अगर उसका है जो भगवान को छोड़ करके और कुछ जानता नहीं, अनन्य भाव, केवल कृष्ण को ही जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान से। इस प्रकार गुण जिसका है, उसका अगर काम में कभी दोष भी दिखाई पड़े तो साधुरेव समंत, वो साधु। ये हमारा दाद जी भाई जैसा साधु का महिमा वर्णन कर रहे थे। वास्तविक साधु महिमा संपन्न है। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं साधु संग सर्वशास्त्रिक लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। साधु सब शास्त्र में साधु संग करने के लिए उपदेश दिया है। तथा दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुस्संग को त्याग करके साधु का संग करे। ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए
साधु संग प्रधान, साधु संग आदौ सद्या ततो साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा ततो रुचि ततो तथाशक्ति ततो भाव साधुका नाम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् प्रमः। भगवत प्रेम लाभ करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं। ये दुनिया का प्रेम को छुट्टी लेकर के प्रेम तो रहेगा, बाकी भगवत प्रेम सबका भीतर है। जानवर का भीतर भी प्रेम है। कुत्ता भी अपना बच्चा को पालन करते हैं, शेर भी अपना बच्चा को पालन करते हैं। शेर छोटे छोटे बच्चे जब महान भयंकर शेर का ऊपर उजलता है, खेलता है, वो आराम पाते हैं। ये प्रेम का बात। तो प्रेम सभी में है, जीव मात्र में है। बाकी वो प्रेम ये जो हम लोग दुनिया में लगाते हैं, ये इसके नाम है माया। और वही प्रेम जब भगवान में लगाइएगा उसकी नाम है भक्ति। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषिकेश। और ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। तो इंद्रिय जब शुद्ध होकर के तत्परत्वेन निर्मलम भगवान की सेवा में लगाया जाएगा, उसकी नाम है भक्ति। तो ये हमारे पास जो पुस्तक है ये चैतन्य चरितामृत, इसका इंग्लिश में हम लोग भाषांतर किया है। ये जैसा किताब आप हमारे सामने देख रहे हैं, ऐसी 17 किताब से संपूर्ण है। और ये सारा दुनिया में बड़े आदर से इसको ग्रहण करते हैं, चैतन्य चरितामृत। तो उसी से एक आज श्लोक आप लोग को सुना होगा। ये उनके विषय है सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी जो कि रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीत, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे। और वृंदावन में रह करके चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको प्रचार किया था। उसी धारा अनुसार उनका पदानुसार अनुसरण करके जो हम लोग विचार दुनिया में प्रकट कर रहा हूं, ये चैतन्य महाप्रभु का विचार और उनका मिशन जो कि गोस्वामी लोग प्रचार किया था। और सभी शास्त्र छोड़ दिया है, उसी को हम लोग खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा में रूपांतर करता हूं। और जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, स्पेनिश भाषा में, ये सब यूरोपियन भाषा। तो किताब हमारा खूब बिकता है। आप सुन के तो आश्चर्य हो जाएंगे कि हम लोग 25 से 30 लाख रुपया की किताबें हर महीना में बेचता हूं। और इसी में हम लोग का खर्च चलता है। और जैसा ये बालक श्रीमान एल्फ्रेड फोर्ड, ये हम लोग को कम से कम 2.5 करोड़ रुपया दिया है। तभी हम लोग का खर्च चलता है। हमारा खर्च है कम से कम 20 लाख रुपया माहौल। 100 सेंटर है, तो सब भगवान की कृपा से चल रहा है। एक सेंटर आपका नैरोबी में खुला गया है, उसमें आप लोग सब को अच्छी तरह से सहयोग कीजिए और किताबें पढ़िए। और क्या हम लोग मिशन प्रचार कर रहा हूं उसको समझिए
ये कोई धर्म विशेष का बात नहीं है। असल में यही धर्म है। धर्म क्या चीज है? उसको जमराज ने बताया, जो कि धर्मराज है, धर्म का विचार कर। वो धर्म का विषय उनको जब पूछा गया, उनका अनुचर वर्ग, जो ये अजामिल महापापित है और इसको हम लोग ले आना था, बाकी विष्णुदूत आके इसको रक्षा की और लाने को नहीं दिया। तो धर्म अधर्म का क्या विचार है? उस समय धर्मराज बोला था, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो जो भगवान जो कानून बता देता है उसका नाम है धर्म, और सब अधर्म। और सब अधर्म है। इसलिए भागवत में पहले ही बताया है, धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र श्रीमद् भागवते कोई तब धर्म प्रोज्झित। प्रोज्झित का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में उज्झित। जैसे आप लोग कमरे को साफ करते हैं और खूब अच्छी तरह से झाड़ पूछ करके मैला सब निकाल बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार जो धर्म नहीं है उसको अच्छी तरह से झाड़ू दे करके निकाल बाहर कर दिया गया है। ये भाव धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र परम निर्मसराना। और ये जो धर्म है परम धर्म, वो किसके लिए है? वो निर्मत्सर के लिए, जिसको हिंसा नहीं है। हिंसा मत्सरता, मत्सरता का अर्थ प्रकाश किया है श्रीधर स्वामी। मत्सरता पर उत्कर्षहनम असहनम। दूसरे को तरक्की हो रही है, उसको देख करके जो जलता है उसका नाम है मत्सरता। पर उत्कर्षणम असहनम। दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, ये दुनिया का नियम है। अपना भाई कभी तरक्की हो रही है तो उनको भाई देख करके जलेगा, दूसरे का बात छोड़ दी। पर्सन टू पर्सन, व्यक्तिगत तो वो होता ही है, इन समाजगत तो होता है। इन कौम, इन धर्म, हिंदू मुसलमान, और फिर नेशनल, फिर पार्टी, ये केवल मत्सर होता, केवल मत्सर। इसलिए ये जो भागवत धर्म है उसके लिए है, जो कि मत्सरता छोड़ दिया, परम निर्मत्सर। वास्तव वस्तु वेदम, वास्तव वस्तु जो है, झूठा वस्तु नहीं, जो वास्तव वस्तु है उस विषय में, तो वो जो धर्म है, धर्म प्रोजित, यही वास्तविक लक्ष्य वस्तु है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म संस्थापन करने के लिए युग युग में अवतरण करता हूं। तो वो धर्म भगवान क्या बताया? जो धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं वो क्या धर्म है? वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, वो धर्म। जितने दुनिया में धर्म सब बनाया गया है, ये सब धर्म नहीं है, ये सब कोई तब धर्म है। असल धर्म है भगवान में शरणागति। जो भगवान इतना दिन आपको मैं भूल के रहा और सारा ब्रह्मांड में घूमते घूमते अनेक प्रकार 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते हमारा ज्ञान नहीं हुआ। अब जाकर के आपकी कृपा से तत्प्रसादा मधुसूदन, जैसे अर्जुन बताया, तत्प्रसाद, आपकी कृपा से नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो गया। और क्या मोह नष्ट होकर के क्या करोगे आप? करिष्ये तद वचनम तव, जैसा आप बोलते हैं वैसी करें। इसका नाम मोह नष्ट।
हमारी मन माफी और काम नहीं करें, जो आप बोलेंगे वही करो। भगवान वही बोलता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, हमारा शरणागत हो जा। तो शरणागत होने माने मतलब क्या होता है? जो भगवान जो कहेंगे उसको मानना, इसका नाम है भक्ति। जो मन माफिक नहीं, जो भगवान कहते हैं उसको करो, उसका नाम है भक्ति, और उसका नाम है धर्म। जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं और भगवान जैसे बोलते हैं ऐसी बात करते हैं, वो है भक्त। और जो भक्त हुआ वो मुक्त हो, उसी वक्त मुक्त हो गया। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं जो तुम शरणागत हो जाओ, अहंत्वा सर्व पापे भव मोक्षयामि। जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं, फिर मुक्त होने का बाकी क्या रहेगा?